A very warm good morning to all. I, Dr. Namrata, Associate Professor from the Department of Management, on behalf of the Good Bharati morning, ma'am. University, Durg, welcome to our special guest, Dr. Nidhi Raj, Director of Educational Training and Counseling Institute, our Vice Chancellor of the University, Sri Sushil Chandrakarji, Vice Chancellor of the University, Dr. H.K. Pathak sir, Registrar of the University, Dr. Virendra Kumar Swankar sir, our academic head, Dr. Alok Bhatt, and respected colleagues and dear research scholar, I welcome you all in today's special guest lecture on literature review. Today, Today, Dr. Mbara Dr. ma'am is Ambara ma'am is associated with me associated to with me smooth to running smooth of running this of this guest lecture. guest I lecture. invite I Mbara invite ma'am to Ambara ma'am introduce to our special introduce our guest. special guest. Thanks, Dr. Namrata, to give me this opportunity. It is my pleasure to invite today's guest speaker, Dr. Nidhi Rajgupta, at webinar of research methodology. On behalf of Bharati Vishwavidyalaya, we are privileged to have Dr. Nidhi Rajgupta, a well-known academic and corporate trainer. She is the brand director and brain behind the Brand Triangle, the learning studio which incepted by passionate trainers. She is also one of the certified specialists in India on Divoli storage. Dr. Nidhi Rajgupta has overall 12 years academic experience as associated formerly as assistant professor at Institute of Business Management and Research, Pune, published numerous papers, and she has worked with Reddington India for IBM Software as technical sales specialist. She is rank holder in Pune University. She received her PhD in marketing management as well as qualified national eligibility test in management. Uh, we are privileged to associate it with Madam on literature review. We warm welcome Dr. Nidhi Rajgupta, owner of a very creative and concentrative personality, for today's guest lecture. It's over to Dr. Namrata again. We welcome on behalf of Bharati Vishwavidyalaya. We welcome you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Mbara ma'am. Now, I would Now, like to I would invite like Dr. to invite Nidhi Dr. Raj. Nidhi Raj. Please Please take a charge take a charge and instruct and me to instruct. change the slide. Yeah. Yes, good morning, one and all. Thank you, Dr. Namrata, again for introduction. And it's my privilege also to, cater all the kind of researcher which is today available with all of us. So the topic is literature review. Quite interesting topic. Though research is something which is very heavy in nature, but I'll try to make it easier for all of you because I can understand जो हमारे आज crowd है, they are from different sources. So I'll try to catch up. मैं mix करने की कोशिश करूंगी कि सबके साथ जो भी आपके queries हैं that we will able to solve. Before that, I'll just start what I'm going to talk about. क्या मैं आज बताने वाली हूँ. We'll start with agenda slide, ma'am. Second slide. Yes. So, ma'am, can you run on PPT mode F5? Full screen. Is it? Is it visible? Is it okay? I have to. Is it okay? Hello. Is it okay, ma'am? Actually, I have to allow candidates to join.
is it okay, ma'am? Because I have to allow candidates to join. It's not on, ma'am, like full screen. Small content I can see at a time. Just a minute. Just try to do it, ma'am, with the F5. Actually, Function key F5. I have to allow candidates to join this lecture. That's what I Okay. using this small window. Okay. But ma'am, problem is here is like every content is at the same time. So the candidate can't, put concentration on one topic. That's why. Okay, I'll try. Now is it okay? Is it in full screen now? No, ma'am, it's not okay actually. Just a minute. Give me a second. Now? No, ma'am, it's still not. Means I mean to say the side panel should not be visible. मैम फर्स्ट टाइम मतलब शेयरिंग टू वो उसको पहले वो करना है मैडम, पहले उसको F5 मतलब पूरी स्क्रीन कर देना है, उसके बाद देन उसको फिर विंडो शेयर करना है. Just a minute. Now is it okay? Yes, ma'am, perfectly fine. Okay, thanks. Yeah, so we'll start first with introduction. Introduction means, ma'am, just to hold for a minute, means let me just introduce. Thank you so much. I know it's a technical, Sure. difficulty or all online things. So students, very well, like you all are here. So हम लोग start करेंगे introduction part से, और we'll understand about LR in depth. क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है LR की, मे बी यू पीपल वुड बी इनटू हैव एंटर्ड इनटू रिसर्च जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, और आप में से कुछ जो होंगे ऑलरेडी कर रहे होंगे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी कि LR एक्चुअली होता क्या है. सो विल सी इनटू इंट्रोडक्शन, देन विल मूव इनटू आवर सेकंड पार्ट विच इज मिथ एंड ट्रूथ. सो मिथ एंड ट्रूथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है LR को लेकर के, जिसके कारण कि जो रिसर्च है वो फुलफिल नहीं हो पाता है. LR जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है रिसर्च का. You can say that is the base of your research methodology. So there are few myth and there are associated truth. So we'll in this session हम लोग try to clear करेंगे कि myth क्या है, truth क्या है, so that हमारा आगे जो research का process है वो easier हो जाए हमारे लिए. नेक्स्ट इज फंक्शन एंड बेनिफिट्स. डेफिनेटली हम लोग इसमें समझेंगे कि LR जो है, जो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका फंक्शन और बेनिफिट और इम्पोर्टेंस क्या है. बिना फंक्शन बेनिफिट इम्पोर्टेंस के हम इसको ठीक से यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दिस इन आवर होल रिसर्च. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है. LR जो है, लिटरेचर रिव्यू जो है, इन शॉर्ट हमें क्या क्या दे सकता है, हम इसको कैसे अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं. तो फंक्शन बेनिफिट्स इस सेक्शन में हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे. नेक्स्ट विल गो टू चक्रव्यूह. चक्रव्यूह जो है ये एक तरह से प्रोसेस है जिसमें कि हम एक्चुअल समझेंगे कि LR को कैसे स्टार्ट करना है, उसका स्टेप वाइज जो प्रोसेस है. बिना उस प्रोसेस के वी कैन नॉट प्रोसीड. अगर प्रोसेस में एक भी स्टेप अगर हम मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च फाइंडिंग में वो एक गैप जो है वो रह जाएगा. तो समटाइम एज ए रिसर्चर, जब इनफैक्ट मैंने भी अपना PhD किया था, तो प्रोसेस को समझने में बहुत समय लग गया था. तो प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हम इस सेक्शन में प्रोसेस को समझेंगे डिटेल में.
इसके बाद जो लास्ट है वो ट्रायंगल ए का मंत्रा होता है, जो आपका टेक अवे होगा, which you can take away and you can understand, you can use it throughout your research period and later on also. So that is a short, simple, आपको easy होगा understand करने में. So let's start for the day. Introduction part, literature review. मैं आप में से कोई अगर मुझे बता सके, उनको जो भी पता है, बिकॉज यू नो ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं आपसे सुनूं तो मुझे समझ में आए, आपको भी इजी होगा समझने में. तो कोई भी अगर मुझे बता दे, यू नो स्मॉल थिंग, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेचर रिव्यू. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Sorry. Good morning, Good ma'am. morning. Literature review means we are going to work on a specific problem. Prior to us, so many people have already worked on that. So we can get an idea about our work. We can get a direction by doing Very literature review. Already very works, whatever they have done, and what are their findings and all, which could help us a lot to do our work and to show a direction path for our work. Correct. Very true. So basically literature review is a कॉम्प्रिहेंसिव समरी. कॉम्प्रिहेंसिव समरी का मतलब ही हो जाता है कि हमको उसको कॉम्प्रिहेंड करना है. ये नहीं कि वो जैसा दिया है उसको वैसे ले लेना, उसको हमको समझना है. जो कि प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स उससे आपके टॉपिक से रिलेटेड है, we have to fetch all those detail and we have to comprehend. Comprehensive word is very much important to understand, because जैसे कि हमने अपने स्कूल डेज में comprehension किया है, तो comprehension का मतलब क्या होता है, we just you know हम बस ऐसे पढ़ के नहीं निकल जाते, हमको ऐसे उसको पढ़ना है कि हम खुद से उसमें क्वेश्चंस सोचें और उसके आंसर्स भी हमारे पास होने चाहिए. तो ये एक बहुत बेसिक छोटा सा कीवर्ड है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है फॉर लिटरेचर रिव्यू. सो लिटरेचर रिव्यू, as you can see on my screen, it's a comprehensive summary of previous research on a topic. Actually मैं बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समझ में इजीली आ जाए. अब जो इसका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी डेटाबेस. जो अपना रिसर्च रिव्यू है वो प्राइमरी डेटाबेस पे, जो कि स्कॉलर्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, उन पे डिपेंड करता है. और ये जो प्राइमरी डेटाबेस है ये ऑथेंटिक होना चाहिए. मतलब जो आप सोर्स ले रहे हो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से सोर्स ले रहे हो. हम लोग सोर्स पे भी बात करेंगे फर्दर ऑन. देन सेकंड पॉइंट नम्रता मैम, is it should be in black and white, written document. It should be from written, not from a audio. There are various podcasts available, webcast available, so that is for information, but we cannot make base as a review, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है. तो हमको ये समझना है कि जो हम लिटरेचर रिव्यू लेते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब रिटन होना चाहिए. वो पब्लिश हो नॉन पब्लिश हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपका जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट से होना चाहिए. बिकॉज वी हैव टू रेफर बैक कि हमने कहाँ से ये सोर्स लिया है, ताकि आपके जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, समवेयर यू हैव टू जस्टिफाई दैट यस आई हैव टेकन दिस सोर्स फ्रॉम दिस प्लेस. Got it? I think you can understand. Now the third point is very much important, very much important. Why and how your work is original. ओरिजिनल होना चाहिए. जो आपका काम है वो क्यों ओरिजिनल है और कैसे ओरिजिनल है, ये आपको एलआर में आपको जो है इंट्रोड्यूस कराना होता है. तो ये बेस, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एलआर करने से पहले जानना. प्राइमरी डेटाबेस होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका जो रिसर्च है दैट शुड बी बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी. नेक्स्ट स्लाइड मैम. ओरिजिनलिटी. अब ओरिजिनलिटी में हम बात करेंगे. जो पहला पॉइंट है ओरिजिनलिटी का वो है न्यू इंपीरियल वर्क. अब कोई मुझे बता सकता है एनी की इंपेरिकल का मतलब क्या होता है रिसर्च में? एनीवन? एम्पेरिकल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन सम फैक्ट, मींस ऑन सम ऑब्जर्वेशन, ऑन सम एक्सपेरिमेंट. If you have already done some experiment, if things are there, you have to take that work. So जो हमारा originality है वो आता है new imperial work. आप base रख सकते हो अपने background, you can take from previous research, but आपका जो काम है वो new होना चाहिए based on previous research. ठीक है. Second point is your interpreting known ideas in a new way. लाइक अब जैसे कि न्यू वे है आपका, कहने का मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी आइडियाज आपको पता है कि ये है. जैसे कि हम सेल्स प्रमोशन लेते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करें तो असेंबली लाइन, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, असेंबली लाइन क्या होता है? इज अ प्रोसेस. असेंबली लाइन इज अ प्रोसेस वेयर कार नॉर्मली देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्री, बट नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री असेंबली लाइन इज यूज्ड
to manufacture car on different stations. Like पहले कार की बॉडी बनती है, तब उसके इंटरनल पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, फिर उसके मोटर्स का पार्ट, फिर उसके जो बाहर का हिस्सा होता है, पेंट होता है, फिर एक्सेसरीज होती है. तो ऐसे डिफरेंट असेंबली लाइन्स होते हैं. अब अगर आपको पता है असेंबली लाइन है ये, यू नो अबाउट दिस आइडिया, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द न्यू वे. तो कुड बी लाइक असेंबली लाइन, देयर इज अ वर्टिकल लाइन, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर इज अ सर्कुलर लाइन. तो अगर आपका रिसर्च इन तीनों को मिक्स करके होता है तो एक नया आइडिया है. तो मीन्स ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नया कोई चीज ढूंढना है, आपका बेस रहेगा पुराना, बट आप उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हो. तभी तो आपका रिसर्च जो होगा वो डिफरेंट होगा, तभी तो आपको रिसर्च की जरूरत है. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ रिसर्च until unless you are not bringing something new. So that's the point here. Next point is giving new data to old problem. Giving new data to old problem. Again, अगर हम अपना जो भी करंट सिनेरियो कोविड को लेते हैं, तो कोविड कैसे अब हमारे लिए ओल्ड प्रॉब्लम हो गया. हम 2 साल से इसको झेल रहे हैं अच्छे से. वी ऑल आर थ्रू विद दिस कोविड. तो अगर इफ यू टॉक अबाउट न्यू डेटा इन ओल्ड प्रॉब्लम कोविड, so could be like post vaccination impact on child psychology, we can take, or post vaccination psychology on business, you can say business leaders, how they are taking, how as a world. So this is, you are giving new data to old problem. तो ओरिजिनलिटी आपको समझ में आ गई कि कैसी ओरिजिनलिटी आपको मेंटेन करनी है. बेस विल बी ओल्ड, बट आइडियाज यू हैव टू ब्रिंग न्यू डेटा, और you have to do it in new way. I think means we can move to next slide. Yes. So literature review की जो myth है, truth है, वो हम समझेंगे. तो literature review हम किसको कहते हैं? Ma'am, next point. Collecting and compiling facts. Correct? We all know that it is a collecting and compiling. So 50%. The are 3 important parts which is coming into that. Yes, any confusion? Yes, so just I said, literature review. आशा शर्मा, माइक ऑफ कर लीजिए आप. Actually, I am presenting the slide, so I am unable to mute candidates. So this is a request to candidates, please mute yourself. We'll have question answer round at last. You just jot down your, if you have any confusion, you just jot down as per my slide. You just put the caption and put your confusion. We'll cater at last. No doubt. We have, ample time to discuss all your problems. Yes, ma'am. Continue. Yeah. Okay. So yeah. Request to candidate, please mute yourself. This is a request to candidate. So mute कर दीजिए. I'll try to raise my voice more so that no disturbance will, can affect. ठीक है नम्रता मैम, मैं ध्यान नहीं देती हूँ डिस्टर्बेंस पे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, हमें डाइवर्ट नहीं होना है. Sure ma'am, sure. Dr. Nidhi Raj Gupta. मैम म्यूट हो गए मैम. मैम प्लीज योर माइक इज ऑन. Am I okay? यस मैम. Yes. Thank you for reminding. तो मैं ये कह रही थी कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो कलेक्शन एंड कंपाइलिंग फैक्ट्स सिर्फ नहीं है, ये इससे कुछ और बढ़ के है. वो क्या बढ़ के है? नब्ता मैम, इफ यू कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट आई कैन शो. Have you explained Yes, next it? ma'am. Okay. Yeah. That's it ma'am. Before Just you go to previous slide. Okay. Go to previous. Yes, just here. So literature review is actually analytical thinking,
क्रिटिक्विंग एबिलिटी एंड एम्पेरिकल रिसर्च। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और इसको हम समझे, अगर हम इसको नहीं समझेंगे यहाँ पे तो हम बिल्कुल मिस्टेक करने वाले हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में। तो विल टेक वन पॉइंट एनालिटिकल थिंकिंग। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में है तो सब बोलेंगे कि हाँ रीजनिंग शॉर्ट ऑफ, थोड़ा दिमाग लगा के किसी चीज को समझना। आप सही हो बिल्कुल, एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब लगभग वैसा ही होता है। तो हम लोग पहले 1 by 1 तीनों को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो एनालिटिकल का मतलब होता है बीइंग इंसाइटफुल, अंतर्दृष्टि जिसको हम हिंदी में कहते हैं टिपिकल अंतर्दृष्टि, मतलब किसी चीज को अंदर से समझना, बिल्कुल उसके अंदर से समझना, अपने अंदर से ज्यादा उसके अंदर में घुस के हमको उसको समझना होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इनसाइट ऑफ दैट थिंग। सो हाउ इनसाइट कैन बी डन, there is a process, means through different angle we have to take 360-degree rotation you can say for any topic. So first point is when you are collect, because LR का सबसे important part first होता है data collection ही। तो analytical thinking का जो भी data आप first collect करते हो, the second point is ma'am you can click breaking the problem breaking. It means आपको छोटे छोटे चंक में बदलना। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ प्रॉब्लम मार्केटिंग का, सेल्स प्रमोशन इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, तो इसमें क्या है, सेल्स प्रमोशन एक टॉपिक हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर अलग टॉपिक हो गया। तो वी हैव टू ब्रेक इट। जो आपका रिसर्च टॉपिक है पहले आप उसको ब्रेक करोगे सो दैट यू कैन वर्क ऑन ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट टू गेट बेटर अंडरस्टैंड योर लिटरेचर रिव्यू। सो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है कि जो भी आपने प्रॉब्लम को डिवाइड किया उससे रिलेटेड क्या फाइंडिंग आई है और उस फाइंडिंग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, बट how data collection, breaking into small chunks and then bringing the relationship, and then we have to formulate theory। हम उसके से जो हमारा रिजल्ट आया उस पर हमको थ्योरी बनानी है और उसको टेस्ट करना है कि ये सही है या नहीं है। और जो सबसे आपका जो लास्ट पार्ट है, कैन एनीबडी गेस, इज अ डेवलप सोल्यूशन। मीन्स जो आपका उसके बाद आपको अपना खुद का सोल्यूशन निकालना है कि हाँ जो मैंने सेल्स प्रमोशन और कंज्यूमर बिहेवियर पे मुझे जो डेटा मिला, इससे जो मैंने थ्योरी बनाई है उस पर मुझे अब अपना रिसर्च जो है वो डेवलप करना है ना, और उसको मुझे इवेलुएट करना। वो इवेलुएट तो आप करोगे, आप क्वेश्चनर जो आप बनाओगे फिर उसको प्रोसेस करोगे। तो एलआर इसलिए जो होता है वो पहला काम होता है। डेटा, पूरा डेटा हम गैदर करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हाउ वी हैव टू मूव फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड में। यस, सो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में, क्योंकि दोनों वर्ड ऐसे सिंपल लगते हैं सुनने में, बट दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि एनालिटिकल थिंकिंग इज इनसाइट, मींस जो अंतर्दृष्टि होती है, जो फुल ओवरव्यू होता है किसी प्रोडक्ट का। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, मैम इफ यू कैन क्लिक देन दे कैन सी, क्रिटिकल थिंकिंग इज एनालिटिकल थिंकिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, साउंड अजम्पशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। इट्स अ मच वाइडर थिंग, बट यहाँ पे हमें इतना वाइड नहीं जाना है बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग एक पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, एलआर के लिए हमको बस एनालिटिकल रहना है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्रिटिक्विंग एबिलिटी। जनरली क्रिटिक्विंग एबिलिटी को लोग क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। क्रिटिसिज्म का लिटरल मीनिंग होता है निकालना फॉल्ट। जैसे कि हम सुनते हैं मूवी का क्रिटिक्स निकालना, किसी के प्रेजेंटेशन का क्रिटिसिज्म करना, मीन्स उसके जो फॉल्ट्स होते हैं उसको निकालना। बट क्रिटिक्विंग एबिलिटी जो होता है एलआर में, वो बिल्कुल नहीं होता है कि आपको किसी का फॉल्ट निकालना है। पहली बात हमको ये समझना है, इट इज बेसिकली दिस इज द मिथ। हम लोग अभी मिथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली मिथ कि क्रिटिक्विंग एबिलिटी जो होता है वो क्रिटिसिज्म करना है। इट्स नॉट ट्रू। क्रिटिक्विंग एबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज वर्किंग ऑन हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मतलब आप जो भी एलआर का जो भी आपका कंटेंट है वो क्यों है, कैसे है, कब हुआ, इस पे हमें जो है गौर करना होता है। सो अगेन इट्स अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट वे। सो दैट इज अ क्रिटिक्विंग एबिलिटी, नॉट क्रिटिसिज्म। थर्ड है आपका एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है मैम, एम्पेरिकल अप्रोच पे हम आते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच जो है, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी होता है कि एम्पेरिकल होना चाहिए। जैसे कि जो आपका बेस है, प्रीवियस रिसर्च जिन्होंने किया है उसको हम लोग लेते हैं एलआर में, करेक्ट। उसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है एम्पेरिकल अप्रोच में, आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसका इंडक्शन किया, आप उसको अपने हिसाब से समझते हो, फिर जितना आपको लगता है आप उतना लेते हो, एंड देन यू डिडक्ट द रेस्ट पार्ट, बिकॉज वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग, करेक्ट। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम वही पॉइंट्स लेते हैं, तो हम डिडक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं। सेम अपना जो एनालिटिकल का प्रोसेस है वही एम्पेरिकल का भी प्रोसेस है समहाउ।
सो ये 3 चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है. वी हैव टू कीप आवर माइंड इन वेरी लाइन एंड फाइन वे. How we have to move through analytical, and then we have to go to, yes, can anybody add? So we have to move accordingly, and then the last point is your empirical approach. तो इन तीनों के साथ हमको बढ़ना है. Yes ma'am, you can move to next slide. So just आपको remember कराने के लिए मैं बता रही हूँ कि literature review is a composition of analytical thinking, critiquing ability and empirical approach. So ये हमको अपना 3 चीज़ें ध्यान रखनी है स्टार्ट करने से पहले. Those who have joined late, for them also, this is so far we have done. अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो इन 3 चीज़ों पे बेस होता है. Yes मैम, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, this is a short, you can say, break for all of you, क्योंकि heavy होता है हमारा रिसर्च. तो अभी इसमें जो है आपको एक अम्ब्रेला फाइंड करना है, एक क्लोज अम्ब्रेला. जो फाइंड करे वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताए कि कहाँ पे है. नंता मैम, यू कैन ऑल्सो हेल्प. दिस इज फॉर एवरीवन बिकॉज हम लोग रिसर्च में है. वी आर इनटू रिसर्च. वी हैव टू फाइंड मेनी थिंग्स, सो यू हैव टू फाइंड हियर. कम ऑन, कीप योर आईज क्लोज टू द स्क्रीन. Yes, anyone? Can anyone? Yes ma'am. Yeah, right right side में के लास्ट में. हाँ बिल्कुल सही है आप. सही. right और side last में. बाकी लोग भी राइट साइड देख रहे हैं. Yes ma'am. सबको मिल गया है. Yes ma'am, मिल गया. Yes ma'am. वाह, वेरी गुड. तो मुझे 3 लोग दिख रहे हैं हाईलाइट जिनको मिला है. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? स्टिल दे आर इनटू देयर लिटरेचर रिव्यू फाइंडिंग मोड. मैम यस मैम मिल गए. Yes ma'am. Visible. मिल गया. वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप लोग एकदम Yes, मतलब ma'am. अब आ गए हैं पूरी तरह से रिसर्च में. Yes ma'am. Yes, great, great. सबको मिल गया है. नम्रता मैम, चलिए बहुत अच्छा. Very good, wonderful, wonderful candidate. This is how we have to, analytical. हम लोग को बहुत हमारे पास, we have so much information in front of us. But what we have to search, we have to be insightful. So insightful का ये आपका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है. नम्रता मैम, just you click so that जो जिनको नहीं मिला है वो भी देख सकते हैं. Just click on the next slide. I'm just clicking, but it is not changing. Some technical problem. Again, oh, not quit. Again, unable to quit or unable to change the slide. I don't know Keep trying, ma'am. Keep trying. what happened. Yes, wonderful, ma'am. Good. This is how we have to put effort continuously in research process also. So everyone can now see the umbrella. The hidden umbrella was the right corner. Yes. So we'll move to next slide, which is major function. अब मेजर फंक्शन क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था. मिथ हमने क्लियर किया. हमने ये समझा कि जो एलआर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या है. वो 3 पार्ट्स हमने समझा. अब हमको फंक्शन और बेनिफिट्स. जब तक हम फंक्शन और बेनिफिट नहीं समझेंगे हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट यूज थिंग. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड फंक्शन वेरी थॉरली सो दैट जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ी यू कैन पिक दोज फंक्शन एज पर योर रिसर्च. क्योंकि सबका नीड अलग अलग है. हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग यहाँ बैठे हैं. तो जिनका जो डिसिप्लिन है उनके हिसाब से वो फंक्शन ले सकते हैं. तो पहला फंक्शन है कंपैरिजन. बिकॉज एलआर लिटरेचर रिव्यू जो वो एक तो होता नहीं है. देयर वुड बी लाइक समटाइम इट हैज टू बी लाइक 10, समटाइम इट विल बी 50 पेपर यू आर रेफरिंग एज पर योर टॉपिक. जितना नैरो टॉपिक हम कहते हैं उतना बेस्ट होता है. बट नैरो टॉपिक के लिए भी बहुत वाइड रिसर्च होता है. तो कंपैरिजन इज द फर्स्ट पॉइंट हियर एज योर मेजर फंक्शन यू कैन से. Second point is finding, major function and finding, and how what and how we have to do this comparison and finding. ये तो मैंने बोल दिया कि मैम ने कह दिया comparison and finding. अब क्या comparison करना है, क्या finding करना है? So ma'am, you just click on the next part. Yes, approaches, and then ma'am you just click so that I can yes, just a minute. So here it is approaches. So we have to understand what do you mean by approaches. Can anybody share what do you mean by approaches? Approaches, yes. कोई कहना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है कि वो क्या approaches में आप क्या compare करोगे और क्या finding करोगे? Approach से आप क्या समझते हो? What is research approach?
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई ऐड करना चाहते हैं? ओके, देन मैं बताती हूँ। अप्रोच क्या होगी आपका, जैसे कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो एम्पेरिकल है या थ्योरेटिकल है, जो मेन अपना होता है, जो बेस होता है, तो पहले आप उसमें फाइंडिंग करोगे। अप्रोच आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर आपको मेथड में आना है। अब रिसर्च मेथड्स आर, देयर आर सो मेनी रिसर्च मेथड, यू नो, लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इसके अलावा साइड बाय साइड चलता है कि आपका मेथड में और क्या है, जैसे कि आप इंटरव्यू के बेस पे कर रहे हो या केस स्टडी के बेस पे कर रहे हो, फोकस ग्रुप है आपका, क्या है आपका रिसर्च का जो मेन मेथड है। तो यू हैव टू जस्ट सी कि अगर ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ, इंटरव्यू के थ्रू मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च फुलफिल करने वाली हूँ या एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने वाली हूँ। तो अप्रोच मेथड के साथ आपको मिलकर के आगे बढ़ना है। जो आप कंपेयर करोगे, लाइक जो भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया है, तो उसका बेस पहला आपको अप्रोच से देखना है कि आपने, आपका जो अप्रोच है, रिसर्च अप्रोच, वो क्या एम्पेरिकल है नेचर में या थ्योरेटिकल है। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एम्पेरिकली चलना है बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च। नाउ मेथड आप क्या लेने वाले हो, केस स्टडी करने वाले हो उस तरह के बहुत सारी चीज़ों के साथ, और या फिर आप क्या करने वाले हो कि आप खुद से डिसाइड करने वाले हो कि मैं इसको एक्सप्लोरेटरी करूंगा, खुद से एक्सप्लोर करूंगा। सो दोज आर द मेथड। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है मेथड आपका क्या हो। सर्वे, बहुत लोग सर्वे मेथड करते हैं, बहुत लोग इंटरव्यू लेते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो आपको मेथड आपको आपका डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड योर ओन मेथड। नेक्स्ट वी गो टू वेरिएबल। In research, variables are like your independent variable, dependent, controlled variable, uncontrolled variable। तो आपको वेरिएबल भी कंपैरिजन करना है, जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको आपको वेरिएबल वाइज भी कंपेयर करना है कि भाई दूसरे रिसर्चर ने क्या कुछ कौन से वेरिएबल को लेके किया, तो उनका क्या फाइंडिंग आया, एंड इफ आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल तो हाउ मच इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई फाइंडिंग। सो दैट विल बी नोवेल्टी ऑफ योर वर्क। तो जैसे कि सिंपल एग्जांपल, अगर मैं साइंस का एग्जांपल लूँ, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट चेंजिंग ऑफ आइस क्यूब, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ आइस क्यूब, हाउ मच इट अफेक्ट्स द मेल्टिंग कैपेसिटी और मेल्टिंग एबिलिटी, correct? So it is a independent or dependent variable that we will understand here. So and the last part is statistics, which all know when we are into research, तो हमको statistics भी देखना है। लाइक अगर एक रिसर्च जो है वो काई स्क्वायर पे हुआ है, तो दूसरा रिसर्च भी अगर मैं अगर कर रहा हूँ तो वो काई स्क्वायर पे करूँगा तो क्या ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आएगा, या फिर रिग्रेशन करूँ तो क्या डिफरेंट आएगा, फैक्टर एनालिसिस करूँ तो डिफरेंट आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स भी आपको कंपेयर करना है कि लाइक प्रीवियस रिसर्चर वॉट एवर दे हैव डन, विच एवर स्टैटिस्टिक्स मोड दे हैव टेकन, if I am going to copy the same mode, so result will be different or result will be same. So if I take some other statistical techniques, so that you have to determine here. ओके, सो अंडरस्टूड। तो मेजर फंक्शन है आपका यही, और फाइंडिंग एंड सिमिलर आर नॉवेल और नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो फाइंडिंग है वो कितना नॉवेल है। नॉवेलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। जैसे कि मैंने ओरिजिनिटी की बात की, तो ओरिजिनिटी या नॉवेलिटी वही कि आप कितना अलग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनफ, देन it's a wonderful thing. If you are not able to contribute, then somewhere you are lacking in your things. So we have to see that. Okay, next ma'am. We'll see some benefits कि अभी इसका बेनिफिट क्या है। देखिए रिसर्च जो है, लिटरेचर रिव्यू जो है वो आप, यस मैम यू कैन क्लिक। रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है दैट गिव्स अ थ्योरेटिकल रूट्स, यू कैन अंडरस्टैंड, थ्योरेटिकल रूट्स आपको देता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ नया बोल दूँ करने, तो आप लोगों की सोचने, यू विल कीप ऑन थिंकिंग अरे मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो लिटरेचर रिव्यू जो है आपको एक रूट्स देता है। इसका बेनिफिट यही है कि आपको ये रूट्स देता है आपके थ्योरी को, जिससे कि आप चीज़ें ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वी हैव आइडियाज़, मीन्स यू गैदर डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़। किसी ने अगर एक टॉपिक पे किया है तो आप उसको कैसे, उससे रिलेटेड टॉपिक को आप कैसे इसमें ला सकते हो, बिकॉज देर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ वन टॉपिक। इफ आई टॉक अबाउट सपोज sales promotion only in marketing, there are different techniques of sales promotion। कहीं पे buy one get one होता है, कहीं पर आपका जो होता है वो quantity discount होता है, कहीं पे percentage discount होता है। तो there are different ideas which you can take and think on कि कौन सी कंपनी किस चीज़ पे कर रही है। देन नेक्स्ट वी हैव मेथोडोलॉजी। आपको मेथोडोलॉजी भी बताता है कि अगर ये रिसर्च जो है, अगर किसी ने एक्सप्लोरेटरी किया है, तो क्या अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव करूँ तो कितना डिफरेंस होगा, और हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी हमको बताता है एलान, बिकॉज समटाइम वी आर हैविंग आवर ओन असम्पशन और उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, एंड देन मिड ऑफ द रिसर्च वी कम टू ओ माय गॉड दिस कैन नॉट बी हैपन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू जो है आपको बेनिफिट बताता है कि आपने जो मेथोडोलॉजी लिया है वो सही है या नहीं है. जस्टिफाई योर फाइंडिंग एज वेल, इट विल हेल्प यू टू जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ अभी जो मेरा फाइंडिंग है वो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज योर linking previous and later. This is also very much important to link previous and later. जो पहले हुआ है और जो बाद में आप करने वाले हो उसमें कितना रिलेशनशिप है. तो बेसिकली जो बेनिफिट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर रिसर्च टेन्यूर बट आफ्टरवर्ड ऑल्सो, बिकॉज आपके पास बहुत सारे डेटा हो जाता है. तो जो बेनिफिट है वो आपको स्टार्टिंग टू एंड देयर आर एंड नंबर. यू हैव टू नो द टेक्निक हाउ टू फेच, कैसे मेरे को निकालना है कहाँ से क्या, ये आपको आना चाहिए. That also we will see because we have seen so far कि हमने क्या क्या मेथड यूज़ किया है, हमको क्या क्या LR में सर्च करना है, किस किस मेथड से सर्च करना है, और लिटरेचर रिव्यू का बेनिफिट्स हमने देख लिया कि हमको क्या क्या मिलने वाला है इससे. तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे स्क्रीन को मेरे, इफ़ यू कैन सी, सो दिस इज अ होलसम रिसर्च. ये आपका पूरा रिसर्च ही हो जाता है. आप मेथोडोलॉजी देख रहे हो, आप फाइंडिंग को जस्टिफाई कर रहे हो और आप लिंक कर रहे हो. These three things are something which is giving you a result. Correct, you are getting my point. So you are getting your research in short. मतलब लिटरेचर रिव्यू आपका एक बेबी रिजल्ट हो जाता है आपका होल रिसर्च का. मीन्स आपने जो अजम्पशन किया, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है और आपने जो LR अपना पूरा रीड किया बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग, आपके पास मेथड है, आपके पास अप्रोच है, आपके पास वेरिएबल है, आप जस्टिफाई कर रहे हो फाइंडिंग और आप उसको लिंक भी कर रहे हो, रिलेशनशिप भी कर रहे हो, तो आपको एक रिजल्ट भी आ जाता है. तो आपको क्या मिल जाता है? यू हैव योर ओन रिजल्ट. आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन शॉर्ट एक बेबी रिजल्ट आपको आपके पास मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे को पता है कि मैंने क्या किया है और मेरे को क्या मिलने वाला है. यस मैम, नेक्स्ट. We'll see the importance. In short, importance. अभी benefit हमने देखा कि हमें ये फायदा होने वाला. We'll see the importance. First point is your improve research methodology. बहुत बार क्या होता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमने सही रिसर्च लिया है या नहीं लिया है. तो जब हम लिटरेचर रिव्यू को सर्वे करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि पिटफॉल्स क्या क्या है, कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग और वेयर आई एम डाइवर्टिंग. So this actually help you to go in a right direction. बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी इतना वाइड होता है कि आप समटाइम यू गेट कंफ्यूज. मैं भी कंफ्यूज हुई थी, एक्चुअली सब कंफ्यूज होते हैं. तो जो LR है इसका यही इंपॉर्टेंस है कि आपको ये बेस से इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपका जो कंफ्यूजन है वो किसी और ने भी सॉल्व किया हुआ है. तो आपको एक ईजिली रिसर्च मिल जाता है, ईजिली आपके पास डेटा मिल जाता है कि अच्छा इस रिसर्च टॉपिक में ये कंफ्यूजन था तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया है कि भाई ये चीज़ नहीं है. या फिर दूसरे रिसर्च में सपोज टेक अ एग्जांपल ऑफ एनी टॉपिक, HR का अगर हम लेते हैं, HR का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेते हैं सपोज, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बहुत सारे पार्ट है. या फिर अगर हम मैस्लो थ्योरी पे लेते हैं, नीड हायरार्की पे लेते हैं, तो अभी तक जितने उस पर काम हुए हैं और क्या है जो अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो मेरे इसमें क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स है जो कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने ऑलरेडी किया है या नहीं किया है, तो मैं उसको कहाँ ले सकता हूँ. So first point is this. When we have focus on research problem. So focus of research problem, we have to stick with our problem. Because why we are doing the research, why we want to do our PhD, because we are focusing on some problem. There are some problem. So we have to come out of that problem. How? As I said, as you will research as a base database, so you have then you will come on your focus on your own problem कि yes मैंने ये एक मुद्दा उठाया है, ये टॉपिक लिया है, मुझे इस पे सोल्यूशन ढूंढना है. तो you have to focus throughout the focus on the problem. तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपके प्रॉब्लम पे फोकस करता है. थर्ड पॉइंट इज नॉलेज बेस ऑफ रिसर्च. है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखिए आप जब रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करते हो तो आपको n नंबर ऑफ लोगों के रिव्यूज मिलते हैं उसमें, करेक्ट, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो. तो आपके पास जो आपका जो डेटा बेस है, जो नॉलेज बेस है, बेटर टू से जो आपका नॉलेज बेस है वो बहुत वाइड हो जाता है. करेक्ट, आप समझे मेरी बात को, आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है. सो जहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता थी, नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. So that is the importance of this knowledge base. ये आपको बहुत help करता है. Then we are having contextualizing research finding. Yes. तो ये क्या करता है? Getting answers. हमने जो मतलब इसको कॉन्टेक्स्ट करना है, हमको शॉर्ट करना है, तो हमको फाइंडिंग पर आना है. तो हाउ यू कैन कॉन्टेक्स्चुअलाइजिंग थ्रू योर आंसर्स. तो फाइंडिंग जो है वो आपको अननोन आंसर्स देता है. तो ये इसका इम्पोर्टेंस है. And last but not least,
इंश्योर नोवेल्टी। जो अगर आप मान लो कोई भी कुछ भी रिव्यू नहीं करते हो, आपने सोचा कि मेरे को रिसर्च करना है, मैं रिसर्च करता हूँ, पता चला कि कल को जब आपका जा रहा है कि आप या तो आपने 3-4 किया और आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने 3-4 कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने 2-2 महीना मैंने एक-एक जर्नल पे लगा दिया, एक-एक रिसर्च प्रोसीडिंग पे लगा दिया, एंड नाउ यू आर हैप्पी। बट माय डियर फ्रेंड, आपको पता है दिस वर्ल्ड इज सो big, and the research, there are different countries who are doing many things on the same topic. They are doing research the same topic. So ensuring novelty is very much important. अगर आपका एक भी पॉइंट मैच हो जाता है तो आपका पूरा एफर्ट, योर होल एफर्ट विल बी वेस्ट। सो इसलिए जो है हमको अपना नोवेल्टी जो है उसको इंश्योर करना है कि यस, व्हाट आई एम डूइंग इज यूनिक, वेदर इट इज डिफरेंट और नॉट डजंट मैटर, बट इट शुड बी कि आपका वो यूनिक जो आपका जो आंसर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, इन द सेंस कि जो आप जो दे रहे हो सोसाइटी को, दैट शुड बी समथिंग न्यू, एडेड वैल्यू, ना कि जो पहले किया हुआ उसी को आप दे रहे हो। नाउ विल कम टू द चक्रव्यूह पार्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हम लोग सब आज यहाँ बैठे हैं। प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस अगर आपका सही हो गया, देयर आर 4 स्टेप, सिंपल 4 स्टेप, और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आप ये 4 प्रोसेस को अभी आप यहाँ मेरे सामने बैठ के समझ लेते हो, then you don't need to worry about, that is a 100% assurance, बहुत easy हो जाएगा आप पहला। तो we'll start with the first point. Yeah, first point is search the existing literature in your research area. आप बोलोगे मैम ये तो पता ही, आप स्टार्ट से तो यही बता रहे हो कि existing research को करना है, of course यही करना है हमें, बट कैसे करना है ये हमको समझना है, कहाँ से करना है। So we'll see one by one how we will go to this. Second point मैम, रिव्यू द लिटरेचर। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया कि आपने सर्च कर लिया, एक इतना सारा डेटाबेस आपने इकट्ठा कर लिया। सेकंड, आप उसको अब रिव्यू करने जाओगे। रिव्यू कैसे करोगे? जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, एनालिटिकल, क्रिटिकल एबिलिटी एंड एम्पेरिकल अप्रोच। नाउ थर्ड पॉइंट मैम इज डेवलप योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आपको यहाँ पे अपना थ्योरी बेस करना है। थ्योरी बेस कैसे करना है? जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू ऑब्टेन किया, उसका जो रिव्यू किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया, जो भी किया, उसके बेस पर आपको अपना थ्योरी डेवलप करना है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज हियर योर राइटिंग अप द लिटरेचर रिव्यू। तो हम लोग ये चारों चीज याद रखें। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विल गो वन बाय वन। प्लीज स्टूडेंट, यू जस्ट कीप योर माइंड हियर, कीप योर स्क्रीन अपडेटेड एंड डोंट डाइवर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पहला है कि आपका कि आप जो आप सर्च कर रहे हो वो कहाँ से करोगे सर्च? इट्स वेरी सिंपल मैम, इट विल स्टार्ट विथ बुक एंड जर्नल। First point is book and journal. Then we have abstract of articles. This is also one of the source where you can select. Third is citation indices. And citation indices क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में? कि जिन्होंने रिसर्च किया है उनका वो इंडेक्स होता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि किसी एक टॉपिक पर मैंने किया, उसी टॉपिक पे किसी और ने भी किया, उसी टॉपिक किसी और, तो वो साइटेशन उसका बढ़ता जाता है। उस टॉपिक पे जो है लोग जितना सर्च करते हैं उतना उसका साइटेशन बढ़ता है। ये एक टिपिकल जार्गन वर्ड है अपने रिसर्च इंडस्ट्री में। आप कह सकते हो कि प्रीवियस वर्क जितना हुआ है वो आपको साइटेशन पे आ जाता है। तो अगर किसी का साइटेशन ज़्यादा है, मान लीजिए 500 है, 600 है, तो मतलब कि उस पर बहुत लोगों ने एक्चुअली किया है, तो आपको उससे ईजी हेल्प मिलता है करने को। तो हम अभी तक हमने 1, 2, 3 सोर्सेज देखा, बुक्स एंड जर्नल, abstract of articles, citation indices, and the next one is your indices of journals, जितने journals हैं वो। तो अब हम देखेंगे कि बुक और जर्नल में क्या क्या है। बुक्स और जर्नल में यस, थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर एंड रिसर्च प्रोसीडिंग, ये सब आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ से बुक एंड जर्नल सेक्शन में आप कहाँ कहाँ से लिटरेचर रिव्यू के लिए मटेरियल इकट्ठा करोगे। तो फर्स्ट वुड बी योर थीसिस। थीसिस आप सबको पता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो वहाँ पे आपको थीसिस इजीली अवेलेबल होता है। देयर आर ऑनलाइन सोर्स एज वेल अवेलेबल। डिसर्टेशन भी होता है, दैट ऑल्सो आई विल शेयर कि आप कहाँ से क्या सोर्स कैसे लोगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू। एंड देन आपका रिसर्च पेपर, देयर आर वेरियस रिसर्च पेपर अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन, सो दैट ऑल्सो यू कैन टेक। Abstract of article, the wonderful source is Emerald. Emerald generally publish, Emerald जो है वो publishing source है, international, national, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे आपको बहुत तरह के आर्टिकल मिलते हैं। और आर्टिकल मिलने से इजी थिंग, व्हाट इज इजी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस Emerald, दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको आर्टिकल शॉर्ट पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाता है कि यस ये मेरे से रिलेटेड है या नहीं। यू डोंट नीड टू रीड होल थीसिस काइंड ऑफ। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया मिल जाता है कि यस दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग। तो यू कैन सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट्स। देन वी हैव साइटेशन इंडाइसेस फ्रॉम प्रोकोस्ट एंड स्कोपस। ये आपको हेल्प करता है बताने में कि दीज आर द डिफरेंट सोर्स।
ये आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से आपको साइटेशन मिल जाएंगे और ये इसी सोर्स पर हम जाते हैं और वहीं से हमको मिल जाता है। और इंडाइसेस ऑफ जर्नल जो है, अगेन जो जर्नल का सोर्स होता है, हम कहाँ से जर्नल्स निकालते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाता है, लाइक ACM, IEEE एंड एल्सेवियर। ये सब आपका इंजीनियरिंग डेटा के लिए होता है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हमारे सामने होंगे, जो होंगे यहाँ पे, वो यहाँ से अपने को हेल्प उनको मिल जाता है। क्लियर है आपको ये फर्स्ट स्टेप? आप इस स्क्रीन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपके जो डाउट्स आप उसको जॉट डाउन कर लीजिए, विल क्लियर लेटर। तो आपका जो मैंने बताया यहाँ पे 4 डिफरेंट सोर्स बताया है कि आप जो लिटरेचर रिव्यू सर्वे करोगे वो क्या करोगे। आप किसी लाइब्रेरी में घुस जाओगे और आप बुक्स को देखोगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वेरी स्पेसिफिक मुझे को ये 4 डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करना है अपना लिटरेचर रिव्यू। पहले बुक एंड जर्नल में जाना है, एब्स्ट्रैक्ट में जाना है, साइटेशन में जाना है और इंडेक्स ऑफ जर्नल्स में जाना है। क्लियर? विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes, the very important part is essential paper and related paper. बहुत बार क्या होता है कि we take different sources, हमारे पास source आ गए, we are very happy, मेरे को अपने subject से related we got so many content, but what are the essential paper and what are the related paper? Sometimes we get confused and when we mix and the result is very ambiguous, मतलब आपको समझ में so messy, it becomes so messy, आपको समझ में नहीं आया कि अरे मैंने कहाँ से start किया, मैं कहाँ पे आ गया। तो आपको पहले ये भी, जैसे कि जो मैंने ये 4 सोर्सेस बताए, इसमें आपको एसेंशियल पेपर और रिलेटेड पेपर को डाइवर्ट करना है, उसको डिवाइड करना है। कैसे करना है, विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अगर ये एग्जांपल है आपका, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट, ये टॉपिक है, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये HR का एक सिंपल टॉपिक है कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए इसमें सेकंड पार्ट कम्युनिकेशन का आ जाता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन और फिर इसको नैरो किस तरह से किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अभी एसेंशियल पेपर आप कैसे सिलेक्ट करोगे, क्या होंगे, ऑल पेपर दैट इज फोकस ऑन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। जो HR के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। रेस्ट के लिए बस ये एक रेफरेंस है कि जो बेस होता है आपका एक्सपेक्टेशन का, उसका एक थ्योरी है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, वहां से हम इसको लेते हैं। तो जो एसेंशियल पेपर होगा वो सारे पेपर, वो 4 सोर्स से जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, आपको वहां से एसेंशियल पेपर उठाना है जो कि फोकस करता है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल पे। क्लियर है? एंड देन विल गो टू एन एग्जाम्पल, व्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल एंड वर्क रिलेटेड क्राइटेरिया। ये एक पेपर मान लीजिए आपको मिला, मेटा एनालिसिस 1996 में ये किया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है ये पेपर आपको उठाना है और इस पेपर को आपको पढ़ना है और आपको इसको डिवाइड करना है कि कहाँ पे डिवाइड करना है, वेर यू हैव डिवाइड, यू हैव टू पुट इनटू एसेंशियल पेपर सेक्शन। जैसे आपने बुक रिव्यू उठाया, बुक और रिव्यू जो मैंने आपको बताया, जैसे मतलब थीसिस उठाया, डिसर्टेशन उठाया, रिसर्च प्रोसीडिंग उठाया, सो फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक दिस एसेंशियल पेपर एंड देन यू हैव टू ऐड इनटू योर एसेंशियल पेपर सेक्शन, करेक्ट। एंड देन विल सी द व्हाट आर द रिलेटेड पेपर। अब रिलेटेड पेपर क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। रिलेटेड पेपर हो गया गिव्स यू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो जिससे कि आप अपना रिसर्च को थोड़ा हैवी बनाओगे, थोड़ा बनाओगे कि हाँ मैंने रिसर्च किया है कुछ ना, तो वो आपका जो है सपोर्टिंग पेपर हो जाता है। जैसे कि आपका जैसे इसमें लिखा प्रोवाइड रिलेटेड इनपुट वेरिएबल, जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और कम्युनिकेशन मॉडल को मिक्स करके होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मॉडल फॉर होटल एम्प्लॉय मोटिवेशन, एग्जामिनिंग द मॉडरेट रोल ऑफ कम्युनिकेटिंग सेटिस्फेक्शन। ये क्या है, देखिए आप देखिए ये डायरेक्ट पेपर नहीं आया ना, ये आपका रिलेटेड पेपर हो गया जिसमें कि होटल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम तो जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया होटल इंडस्ट्री पे। लेकिन इसमें क्या आपको मिल रहा है, इसमें मिल रहा है मेरे को रोल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपको एक साइड में हेल्प करेगा। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स जो हमारे सामने बैठे हैं, यू हैव टू पुट कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंशिएट first of all essential paper and related paper. My dear friend, please understand, if you are not able to do this, so आपका बहुत effort जाने वाला है। I just try to do my best कि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। जो मेन कीवर्ड है वो आपका हो जाएगा एसेंशियल में, जो रेस्ट है वो आपका हो जाएगा रिलेटेड पेपर में। We'll go to next step, literature review obtained. So through method, difference of opinion, there are 3 points into this. मेथड रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जो हमने मेथड जो मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि क्या मेथड हो सकता है आपका, वो मेथड को यहाँ पे डिस्कस करना है। लाइक क्या मेथड हमने डिस्कस किया था, कैन एनीबॉडी ऐड?
रिसर्च मेथड अपना जो सिंपल था कि आप क्या करने वाले हो, आई मीन थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसके थ्रू आप जो भी मेथड कर रहे हो वो आप इसमें रिव्यू करोगे जो भी आपने किया, एंड देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, that also you have to put into that, like इस रिसर्च पेपर में ये डिफरेंट ओपिनियन आया है इस टॉपिक पे, द सेकंड रिसर्च में ये डिफरेंट ओपिनियन आया इस टॉपिक पे. सो ये सब आपको जो है अपना एक बेस वर्क रेडी करना है. तो सेकंड पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड, डिफरेंस ओपिनियन एंड एग्जामिन द गैप. गैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द गैप कि भाई अगर किसी ने एक्सपेंडेंसी थ्योरी पर ये किया है, सेकंड वाले ने ये किया है, तो उन दोनों के रिसर्च फाइंडिंग में गैप क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं क्या नॉवेल करने वाला हूँ इसमें, तो वो गैप समझना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द गैप, यू आर थ्रू, यू आर डन. मीन्स ये आपने जस्टिफाई कर दिया इस चीज को, करेक्ट. See here is this slide, just I want to say you कि जो हमने मेजर फंक्शन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, so this is the same method जो है आपका अप्रोच मेथड, वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स, जो ये फर्स्ट आपका मेथड है, यहाँ पे वही वो पॉइंट आता है. एंड देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड देन वी हैव एग्जामिन द गैप्स. क्लियर? एंड द मेजर पॉइंट इज फाइंडिंग आर सिमिलर और नॉवेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर सेम फाइंडिंग है तो आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं बनता, आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो फिर, करेक्ट. तो आपको नॉवेल चीजें ढूंढनी है अपने रिसर्च में. नेक्स्ट टॉपिक. And yes, the main point here, the second point was read, read and read. There is no other substitute. आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. आप देख रहे हो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है रीड, रीड एंड रीड. आपको रीड के अलावा कुछ नहीं करना. लिटरेचर इज ऑल अबाउट रीडिंग, एंड रीडिंग थ्रू क्रिटिकल एबिलिटी, थ्रू एम्पेरिकल अप्रोच. द फर्स्ट पॉइंट वाज एनालिटिकल थिंकिंग. सो वो आपको बेस में रखना है कि बस मेरे को रीड थ्रू नहीं करना है कि मैंने पढ़ लिया बस हो गया. उसको कंसेप्चुलाइज करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है. कमिंग टू थर्ड पॉइंट, डेवलप अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना ही नहीं पाओगे. गेटिंग माय पॉइंट? आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, जिसके बेस पर आपका रिसर्च आगे बढ़ेगा. तो एक्चुअली इफ यू सी इट्स अ नेवर एंडिंग टास्क, करेक्ट. यू कैन नॉट रीड ऑल द बुक, ऑल द पब्लिश पेपर. उतना किसी के पास उतना एफर्ट एक्चुअली हम जब जो साइटेशन मैंने बताया उससे आपको आइडिया लग जाता है इन शॉर्ट कि कितने रिसर्च हुए हैं इस टॉपिक पर और कितना गैप्स आपको मिल रहा है. तो एक्चुअली जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है ये नेवर एंडिंग टास्क होता है. सो यू हैव टू बी शॉर्ट एंड सिंपल इनटू दैट. तो अभी तक जो अप्रोच जो मेथड मैंने बताया उसके हिसाब से आपको अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो रेडी करना है. Set a boundary until unless you are not setting your own boundary, you will be like keep rotating, keep moving, keep going on. So it will not stop. So you have to understand, you have to set your boundary. And the third point is sources must be sorted. जो सोर्स से आप डेटा ले रहे हो उसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है यू कैन गो थ्रू योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. Next, again, as I said you, the first and the fourth step, both are very important. How to write a literature review means the structure, वो ढांचा कैसे होगा, कैसे उसका आउटलाइन होगा, कैसे मुझे क्या फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट इसमें आता है स्टार्ट विद द थीम विच यू वांट टू एम्फेसाइज. जैसे कि जो हम लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे ना, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, तो फर्स्ट जो स्टार्ट हो तो आपको थीम से स्टार्ट करना है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, या फिर सेल्स प्रमोशन हो गया, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गया. कोई आप मान लो अगर आप ABC एनालिसिस कर रहे हो, तो जो भी है वो थीम को पहले आपको डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट पॉइंट आपका थीम डिस्क्राइब होगा. देन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस रिलेवेंट थ्योरीज विद दैट, क्योंकि हमको थ्योरी को पहले डिसाइड करना लिखना होता है. सो वी हैव टू डिफाइन वेरियस रिलेटेड रिलेवेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन योर थीम. आपके थीम से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया एक्सपेंडेंसी थ्योरी जो रूम्स का एक्सपेंडेंसी मॉडल वो आपका थ्योरी, तो आपको वो वहाँ पे डिफाइन करना है कि यस जो बेस है, जो थ्योरी है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्वॉट एनालिसिस, तो स्वॉट एनालिसिस किसने दिया, ये थ्योरी के पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो आपको उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. तो वो अब पॉइंट आपका सेकेंड पॉइंट में आएगा. द थर्ड विल बी explain the recent advances. ये generally उन स्टूडेंट के लिए है today who are from IT background, from science background. For them it is very much important to explain the recent advances, because in technology is something which is keep changing on very frequent. जैसे मोबाइल है उसकी एप्लीकेशन बहुत frequent change होते हैं, but it is not applicable for marketing and HR. उनके कुछ थ्योरी हैं जो सदियों से चल रहे हैं. Only there are few things which we are adding, okay? But IT में and engineering में there are few technology which
keeps coming. जैसे अभी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत चल रहा है, करेक्ट? तो इसके बारे में आपको इसमें समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग मान लो भी नया ट्रेंड आया है, तो इसके लिए आपको पूरा डेटा इकट्ठा करना. नाउ इफ यू सी from e-commerce, all e-commerce are on the cloud computing. Now the many companies have shut down their office and they shifted on online, means cloud computing. They put their server on clouds, the virtual space, and where they are doing everything. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are also on cloud computing. करेक्ट? मैं आपके सामने कैसे डिलीवर कर रही हूँ, ये न्यू टेक्नोलॉजी है आप कह सकते हो. पहले जो था हमारे पास एक सिंपल स्काइप हुआ करता था और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है. अभी आप देखो कि रिसर्च में आप 100,000 लोगों को इनवाइट कर सकते हो. तो फॉर सिंपल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि जो टेक्नोलॉजी फील्ड है वो बहुत जल्दी चेंज होता है. तो आपको अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एप्लीकेंट हो तो आपको रिसेंट एडवांसेस पढ़ने हैं और उसके लिए यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ यू आर फाइंडिंग, वेरी much important point, how you're finding, contradict, confirm and add. ठीक है, पहला पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है आप उसके रिसर्च से कैसे. ऐसा नहीं होता है कि किसी ने अगर कह दिया कि आई एम बॉस, एवरीबडी इज अग्रीज, यस यू आर बॉस, करेक्ट? और किसी ने कोई रिसर्च किया है तो वही सही है, मैं उसको ही मान के चलूंगा. ये सबसे बड़ा एक मिथ है, इसको लेके हमको नहीं चलना है. अगर किसी रिसर्च ने क्लेम किया है, किसी रिसर्चर ने क्लेम किया है कि ये इफेक्ट इसका ये आता है, हनी बी मॉडल का इफेक्ट ये आता है, तो इट्स नॉट लाइक कि हनी बी मॉडल को मैं मान लिया कि हाँ यही इफेक्ट होता है. यू कैन डू योर ओन इनोवेशन इनटू दैट. सो दैट इज द, यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट समवेयर, डिपेंड अपॉन कि आप उसको क्लेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. लाइक प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी इज समथिंग व्हिच वी डू ऑन नंबर्स में आप प्रोबेबिलिटी करते हो. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वेदर इट इज कॉन्ट्राडिक्ट मैं करने वाला हूँ, and how you have to confirm also. Sometimes we as per our research we confirm also कि yes ये research हुआ है और इसको मैं confirm करता हूँ कि this is what I have done so far and I want to confirm through my addition information, जो मैं अपने तरफ से what I am going to add into that. Then we have important point, specify gaps, जिसकी मैंने पहले भी डिस्कस किया. गैप्स को जब तक आप जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपका रिसर्च का कोई मतलब नहीं बनता है. एंड देन फाइंडिंग एंड योर लिमिटेशन. करेक्ट? वी आर थ्रू विद दिस, दीज आर स्टेप. एंड देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द फर्स्ट 2 पॉइंट विल बी पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर बॉडी आउटलाइन. जो आप पूरा बना रहे, जो आप लिख रहे हो, बट यू आर गोइंग टू राइट इन लिटरेचर रिव्यू, द फर्स्ट 2 पॉइंट वुड बी इंट्रोडक्शन. सेकंड 2 पॉइंट वुड बी योर बॉडी, द मेन बॉडी ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू का. आपने क्या क्या कितने मतलब सोर्सेज से आपने लिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आप उसमें मेन बॉडी बना लो. आप अपने फाइंडिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या फिर उसको ऐड करोगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफाई गैप, फाइंडिंग, लिमिटेशन बी योर कंक्लूजन. ओके स्टूडेंट, आर यू क्लियरिंग व्हाट आई मीन टू से? कि जो फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें आपको 2 पॉइंट लेना है, थीम से स्टार्ट करना है, और जो जितने रिसर्च उस पे हुए हैं दैट यू हैव टू add into this. The second part, main body, will be the recent technology wise advances, and your finding contradict, how that will be the part of your main body. और बहुत important, main body is very much important कि यहीं पे आप अपनी फाइंडिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. एंड द थर्ड कंक्लूजन में जब आप अपना समरी बता रहे हो कि हाँ अभी तक इतने रिसर्च हुए, ये एडवांस है, अब मैं जो उसमें क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे वो गैप फिल करने वाला हूँ, वो आपको कंक्लूजन में फाइंडिंग और लिमिटेशंस के साथ देना है. ठीक है? और अवॉइड प्लेगरिज्म, which is very much important. There are free software available. Keep doing that so that it will help you out. कि आप कहीं ना कहीं आप फिक्स, क्योंकि मैंने बताया कि जो आप कर रहे हो आप कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो बी श्योर कि आप प्लेगरिज्म को अवॉइड करो. Next again we'll take a small break here, and yes ma'am, you just click single click. Yes, here you have to find 2 palms, 2 हाथ ढूंढने हैं आपको. So please student लग जाओ और मेरे को बताओ आप लोग जिन्होंने पहले ढूंढ लिया. मुझे मिल Yes, anyone? Oh wow, Dr. Namta ma'am, congrats. Students, scholars, where are you? On behalf of the Yes, ma'am. Yes, one applicant. Anyone Yes, else? Yes, I can see. Yes, ma'am, I can see. Okay, great. Where can you send me the location, means the exact place where you can see, so that this will be hint for others. मैम ऊपर साइड है फ्लावर के नीचे.
अच्छा, तो चलिए एप्लीकेंट्स, बाकी रिसर्च स्कॉलर आप ढूंढने में लग जाइए, आपको बहुत बड़ा हिंट मिल गया है। मैम नीचे दिख रहा है, मैम नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है। ये 2 फ्लावर के बीच में येलो फ्लावर के Yes, नीचे। ma'am. देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है। जिनको यहाँ पे मिला है दे आर डन, और जिनको जो कहीं और देख रहे हैं उनको और कॉन्सेंट्रेट होना है, उनको और एनालिटिकल होना है, ठीक है। चलिए तो हम Yes. आगे बढ़ते हैं। एक छोटा ब्रेक था, जस्ट ब्लिंक योर आईज, आपको बहुत आराम मिलेगा। अपनी आंखों को आप ब्लिंक करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो कंटिन्यूअस सीइंग स्क्रीन। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वो कॉमन मिस्टेक्स पर है। क्विकली हम इसको देखेंगे। नम्रता मैम प्लीज रिमाइंड मी इफ आई एम lagging in time. Common mistakes, first No. mistake is, You can continue. yes ma'am, thank you ma'am. So the common mistake, very fast we'll go here. The description, only description is not required. मतलब सिर्फ description हमने देख ली, जो common mistake होता है, अगर description लिया, उठा लिया और डाल दिया, ऐसा नहीं करना है हमको। description को नहीं डालना है। Nobody is interested to see the same content. Okay. The next point is without relation of objective, of the main objective, जैसे कि जो भी आपने जिससे लिया है और जो आपका objective है, बिना उसके relation से आप अगर टॉपिक को कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है आपको, और जो भी आपने रिसर्च टॉपिक प्रीवियसली यू हैव ऑप्टेड, उसके ऑब्जेक्टिव को मैच करना है और उसका रिलेशन फाइंड करना है, तभी बढ़ना है। और ये जनरली कोई नहीं करता, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कोई इतना कोई दिमाग नहीं लगाता है, और इसलिए उनका जो रिसर्च होता है वो कहीं ना कहीं जो होता है वो बेंड होने लगता है। थर्ड पॉइंट इज नो कट कॉपी पेस्ट। सो जनरली लोग यही करते हैं, अरे मिल गया चलो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये प्लीज नहीं करना है आपको। विदाउट साइटेशन एंड कोट, सेकंड पॉइंट इज विदाउट साइटेशन एंड कोट आपको नहीं करना है, आपको साइटेशन लेना ही लेना है, कोट लेना ही लेना है, तभी पता चलेगा कि हाँ इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जिसमें मैंने बताया क्रिटिविंग एबिलिटी जो मैंने आपको बताया, इसे मियर रीड नहीं करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको 360 डिग्री वाइज उसको समझना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सब करते हैं, मैंने भी किया था, लेकिन आप नहीं करें इस चीज, ठीक है। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड इवैल्यूएटिंग योर ओन LR, जो भी अभी तक आपने whatever you have worked done so far, you have to evaluate. We'll go fast here. Read and understand the abstract first, जो आपने अपना किया है, about research, clear objective, and then research design. These are the 3 important part while evaluating your own LR, जो अभी आपने बनाई। हम दूसरों के बारे में नहीं बात करी, आपके बारे में बात कर रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा, जो प्रोसेस हमने पढ़ा, उसके बाद आपने अपना LR बनाया, उसको वापस से आपको रीड और अंडरस्टैंड करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप 2, शॉर्ट रेफरेंसेस। आपके जो रेफरेंसेस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा आपको लंबा अपने रेफरेंसेस नहीं रखना है। रिसर्च क्वेश्चन वर्सेस थीम, ये हमेशा आपको, मैंने पहले बताया था, जो आपका ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च क्वेश्चन है वो थीम से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड स्टेप इज कमिंग इनटू डेटा कलेक्शन एंड बैकग्राउंड सब्जेक्ट। हियर इस सब्जेक्ट सेलेक्टेड क्लियर और नॉट, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको समझना है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी डिस्कस्ड। There are few researchers who test also validity, which is very much important actually. अगर आपको validity test करना है, reliability test करना है, there are various methodology also how you can validate and reliability test. So वो आपको अपना check करना है, आपने करने के बाद आपको ये check करना है, then only you will be through with this. And the fourth point is connection between research question and result. रिसर्च क्वेश्चन जो आपने बनाया है और जो रिजल्ट है उसमें आपको जो है स्टैटिकल वाइज उसको आपको क्रॉस चेक करना है। जैसे कि जो आपने अजम्पशंस बनाए थे, आपने कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी किया कि मेरे को ये स्टैटिकल टेक्निक लेना है, तो दैट यू हैव टू डिसाइड हियर। देन वी हैव रिजल्ट क्लियरली रिपोर्टेड एंड प्रेजेंटेड, क्लियरली होना चाहिए। थर्ड, शुड रिफ्लेक्ट द प्रेडिक्शन एज पर इंट्रोडक्शन, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था उसके हिसाब से आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही है या नहीं है। Then the last is your fifth point, which is finding and introduction authenticity. It's clear reasons for your result, आपको अपना reason जो अपने result उसके देना, और weakness और limitation. It's very simple. ये आपका जो 5 मैंने steps बताए, ये आपका अपना खुद का LR है जो आपने बनाया इतना कुछ पढ़ने के बाद। तो इसको आपको बस एक रिव्यू प्रोसेस है, दिस इज ओनली अ रिव्यू प्रोसेस सेक्शन वाइज, जहाँ पे स्टार्ट करते हो रिसर्च क्वेश्चन से और लास्टली आते हो फाइंडिंग पर और उसको आप जस्टिफाई करते हो। Then we have a small fast activity for all of you. Here you can see clap 1, 2 and 3. So if I say clap, you have to do boom. If I say 1, you have to do 2. If I say 2, then you have to blow your mouth like this. And then if I say 3, you have to clap.
आर ऑल डन? समझ में आया? अगर मैं क्लैप बोलूंगी तो बूम करना है, 1 बोलूंगी तो 2 करना है, और अगर मैं क्या बोलूंगी 2 बोलूंगी तो ब्लो करना है, और 3 बोलूंगी तो क्लैप करना है। आर वी ऑल डन? हम करने वाले हैं। प्लीज अपने माइक को आप वो कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, और लेट्स स्टार्ट. Yes, everybody will enjoy this. And you have to put concentration. Okay? And what I am doing, you don't need to copy this. So I'll just clap. If you share your screen, you can share your screen. It will be fun. Clap 3. 3 मैम. You can share your screen. You can unmute yourself with an action icon under. So you unmute and share your screen so that we can only see the actions, because that will use noise. Or those who are unable to, everybody is having some, sitting on some other circumstances. You just unmute yourself and follow what I'm saying. So I'm saying, clap. 2. 3. I'm 3. 3. You don't need to say 3. You don't need to say 3. You have to clap. This is the Clap. basic. You have to clap. If I say 2, you have to clap. Everyone. If I say clap, Boom. 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 Very good. Very good. If I say 2, yes, you have to blow. And if I say Blow. 1, 2. if I say clap, Boom. wonderful. Boom. Yes. A little bit of change. Then we'll go now. Move to next slide. Discipline versus interdisciplinary database. So I'm actually fast because somewhere I think I'm exceeding the time. So discipline is something. Discipline database is something which gives you same kind of data, which is a deep indexing and from relevant journal. Where interdisciplinary coverage is give you a wide and mixed kind of thing. Discipline. Student, somebody. Request to somebody all candidates, kindly mute yourself. Activity is over. Please mute yourself. Yeah, ma'am. Yeah. So in discipline specific, as you can see, it's a science and engineering sources, engineering village, psycho info, PubMed जो साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, काइंडली आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का. और जो इंटरडिसिप्लिनरी कवरेज है लाइक आर्ट, मैनेजमेंट, कॉमर्स फ्रॉम डिफरेंट साइड, स्कोपस है, प्रोकोस्ट है, लाइब्रेरी सर्च है, गूगल स्कॉलर है, ये आपके डिफरेंट सोर्सेज. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर डिफरेंट सोर्सेज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन की और इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है, तो गूगल स्कॉलर वगैरह पर हमें सब कुछ मिल जाता है. और अगर हमको स्पेसिफिक साइंस रिलेटेड चाहिए, इंजीनियरिंग रिलेटेड चाहिए, तो आप ऊपर देख सकते हो साइंस और इंजीनियरिंग के सोर्सेज लिखे हैं, तो यू जस्ट नोट एज पर योर ओन. Now again, yes ma'am, you just move. Yes, so for science and engineering there are more sources. INSPEC, a huge database for institution of engineering, electric engineering. Compenex, it's an index of wide range of engineering literature. And Web of Science, again, it covers more than 3,000 journal in engineering and science. You can take a screenshot. Next ma'am. For management, Google Scholar, Mendeley, Gestor is a journal, storages give you huge, because I now also I refer Gestor, so it's very easily available, and there are number of sources. Cooper's taxonomy of literature review is the base, and if you get time you can read somewhere else before starting your literature, because इनका बहुत बड़ा contribution रहा है. तो आप इनका अगर आप थोड़ा पढ़ लो, बहुत टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं, इसमें फोकस से स्टार्ट करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन तक जाते हैं. देयर आर 5-6 स्टेजेस इनटू दिस, सो दैट विल हेल्प यू इन योर लिटरेचर रिव्यू. एक्चुअली जिस जो है वो मैंने तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, बट ये एक कहते हैं ना लाइक फादर काइंड ऑफ थिंग, कि उन्होंने एक बेस बनाया है, तो जस्ट गो थ्रू दिस. Then we are having this literature search database. This is a very important point, means information I am sharing with you. Just go through this and just take a screenshot, or you can contact the organization to give you as a supplement as an article, so that you can refer it back whenever it is needed. It is having all subject,
and then we are having medical database, engineering database, social science database. Now coming to online searching. Online searching, because we all know that there are lots of content on online. So there are two important things. First of all, there are many other things also, but first two things are keyword search and use of and, or, and not. वेरी मच, बिकॉज लोगों को पता नहीं है, वो सर्च करते हैं, उनको इतना समय चला जाता है वेबसाइट पर ऑनलाइन और कुछ भी ढंग का मिलता नहीं है. क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज हमारा जो कीवर्ड है वो सही नहीं होता है. कि अगर हमें कुछ चाहिए, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग, एंड इफ वी आर नॉट गिविंग राइट कीवर्ड, देन समवेयर वी आर लॉस्ट इन दिस वेब वर्ल्ड. तो वो हमको समझना है कैसे. आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल. डेटाबेस अप्रोप्रिएट सिंटेक्स, पैरेंथेसिस, बूलियन ऑपरेटर एंड फिर जो भी मैं बात करी थी एंड, और नॉट का, इसका हम सही एप्लीकेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Employee expectation and employee engagement, HR topic will give up article and paper that cover both. देखो अब यहाँ पे आप you can see the and I have used here. तो employee expectation and employee engagement will give up the article paper that will cover both. अगर आपका टॉपिक दोनों से रिलेटेड है तो आप उसमें and डालोगे. नेक्स्ट, while employee expectation और, अभी यहाँ पे क्या आ गया है आपका और employee engagement will give you paper of both field. ठीक है. And the third is a boolean operator not, which is used especially for when you want something, but आप देख रहे हो कि मुझे उससे रिलेटेड और भी पेपर्स आ रहे हैं जो उससे वर्ड से थोड़े रिलेटेड है, तो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है कि आप सर्च कर रहे हो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, नॉट एम्प्लॉय एंगेजमेंट. जैसे कि आपने मान लो सर्च किया एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, तो आप देख रहे हो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का भी आपके पास पेपर आ जा रहा है सामने, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना. आप उसको क्लिक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होता है. तो आपको क्या वहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर आपके सर्च में आ रहा है बार बार, तो आपको सर्च करना है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस नॉट एम्प्लॉय एंगेजमेंट. तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट से रिलेटेड आपको एक भी पेपर नहीं आएगा सर्च में. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि नॉट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज योर टाइम फ्रेम. प्लीज सिट ऑनलाइन only for 20 minutes, not more than that. That whatever you are getting detail, that time frame is suitable for any researcher. Then next we are having maintain source. आप सोर्स को टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो. जैसे कि आपने इस डेटा को इस सोर्स से उठाया है, इस डेट को उठाया है, ये टॉपिक है, इसके इतने साइटेशन हुए हैं, तो आपको लास्ट में उसको समरी करने में बहुत ईजी होता है. समटाइम तो हम देखते जाते हैं और क्या होता है फिर हम बाद में उस चीज़ को ढूंढते तो वो मिलता नहीं है. अब नहीं मिलता क्योंकि हमने सोर्स मेंटेन नहीं किया. और देयर आर टेक्निक कि हम अपने मोबाइल की हिस्ट्री में जाते हैं, वेब हिस्ट्री में जाते हैं और वहाँ से सिलेक्ट करते हैं. देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर द होल डे, तो टाइम वेस्टिंग हो जाता है. तो टेबल बना लेना बहुत ईजी होता है. जैसे जैसे आप काम स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग सही, ये नहीं कि आपने आधा मतलब 3 महीने गुजार दिए और अब आप स्टार्ट कर रहे हो. फर्स्ट डे, from first day keep mentioning date, keep mentioning source, keep mentioning citation, which I'm really telling you this is going to help you, great help. Then bibliographic सॉफ्टवेयर जैसे मेंडली है, पेपर पाइल है और जेरेटो है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ऑनलाइन सर्चिंग में. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसमें क्या है कि अगर आपको बार बार सेम चीज़ें आ रही हैं सर्च के थ्रू, तो उसको आप छोड़ दो. यू जस्ट लीव इट एंड यू मूव अहेड. आप यू ट्राई टू सर्च सम न्यू कीवर्ड्स, बिकॉज क्या होगा कि आप एक कीवर्ड से सर्च करो, पूरा आप समय लगा रहे हो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, और एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिल रहा. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इस पर एक्ट करता है कि आपने जो इफ इट इज़ कमिंग, कीप कमिंग द सेम रिजल्ट, जस्ट स्टॉप, सर्च अनदर वर्ड. ठीक है. Now mantra, as I told you that from triangle A we give a mantra, very simple step. First is describe. Now you can easily understand what I mean to describe. जो भी आपने आपका जो रिसर्च टॉपिक है थी उसको डिस्क्राइब किया, उसको समराइज करना है आपको, एंड देन यू हैव टू इवेलुएट, एंड द लास्ट इज इंटीग्रेट. देन आपका LR जो है वहाँ पे यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है. देन अभी इसके बाद जो है, अभी तो हमने अपना LR का पूरा आपको मैंने बता दिया. अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ जो आप मेरे को बाद में मेल कर सकते हो, या अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आई मीन भारतीय यूनिवर्सिटी को आप उनको भेज सकते हो, वो मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट. दिस इज द पोस्ट एक्टिविटी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अभी तक हमने जो मैंने आपको जो पढ़ाया है वो कितना एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल है. इफ़ यू आर ए स्टार्टर इन रिसर्च स्कॉलर, सो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू. So the post activity is, first activity is to understand how literature review is structured. इसके लिए आपको क्या करना है, pick a journal in your discipline, first thing, go to the top cited article, and the third point, compare ELA literature review of at least 3 articles. 3 articles का आपको करना है. क्या करना है, एक जर्नल पिक करना है आपके अपने डिसिप्लिन में. आप मैनेजमेंट से हो तो मैनेजमेंट, आप साइंस से हो तो साइंस, जिस भी डिसिप्लिन से हो, आप हिंदी से हो तो आपको हिंदी का डिसिप्लिन उठाना है. जैसे कि आपका मान लीजिए हिंदी में आपका काव्य है या गद्यांश है, तो आपको जिस पे आप करना चाहते हो आप उसको उठाना है. और अब जर्नल पिक करना है, टॉप साइटेड पे जाना है और कंपेयर करना है एटलीस्ट 3
आर्टिकल्स को। मैंने आर्टिकल बोला है, हाँ, मैंने पूरा रिसर्च नहीं बोला। आपको उस आर्टिकल को लेके समझना है, मतलब आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को उठाइए, उसको आप समझिए, उसके लिटरेचर रिव्यू को पढ़िए, और फिर सेकंड एक्टिविटी है रिलेवेंट लिटरेचर रिव्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एकेडमिक जर्नल, आपको कोई भी आइडेंटिफाई करना है एकेडमिक जर्नल, बट 10 ईयर ऑफ बिब्लियोग्राफिक स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब जो अभी अगर 2022 चल रहा है तो आपको समवेयर 2012 के लगभग का देखना है, ठीक है। एंड द थर्ड इज नो योर कम्युनिटी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नोइंग योर कम्युनिटी थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन सोर्स। अगर आपको आपका कम्युनिटी नहीं पता, जैसे कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको आप कम्युनिटी से आपका, देखिए आप, if we are online, we know the power of community. What is Facebook, what is Twitter, these all are community. So there are research community you can say ResearchGate और एकेडमिया। यहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए, अभी के अभी इस सेशन के बाद लॉगिन करिए, आप अपना आईडी क्रिएट करिए, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा यू विल बी वंडर्ड। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आईडी बनाना है, जिन्होंने बना लिया है वंडरफुल, यू कैन रियली सर्च देयर ऑन बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स व्हिच आई टोल्ड यू। So this is what I wanted to, show you, tell you. Now I am open for question answers. Those who having any questions, Ma'am, ask. Ma'am, could you please tell me once again that activity which you have given, 1, 2, and 3. The second one is not so clear to me. Okay, Relevant the second studies कुछ ऐसा बोला था। Second activity is first task was to how the structure is there, how literature reviews is structured, means उनका बॉडी कैसे है, उनका इंट्रोडक्शन कैसे है, उनका कंक्लूजन, आपको जो है वो बॉडी रिव्यू करना है, ठीक है। सेकेंड में जो है आपको रिलेवेंट लिटरेचर रिव्यू फाइंड करना है, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई टॉपिक है, आपने कोई भी टॉपिक यू हैव डिसाइडेड, तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एकेडमिक जर्नल। आपको एकेडमिक जर्नल किसी भी यूनिवर्सिटी की ज्ञान शोध गंगा है, वहाँ से आप उठा सकते हो, तो कोई भी आपको एकेडमिक जर्नल उठाना है, और एटलीस्ट आपको ये करना है कि जो बिब्लियोग्राफी आप जो ले रहे हो, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि जो रिसर्च है वो 1996 का हुआ है, इट्स अ क्वाइट ओल्ड रिसर्च, ठीक है। तो हमको पता चलता है कि इतने पहले ये हुआ है और अभी ये हो रहा है, तो कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि 10 इयर्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक जो है वो होना चाहिए, ईयर गैप होना चाहिए। जैसे अभी ये 2022 है, 2012 का आपको उठाना, अब उसमें लिखा रहता है ना कि ये ईयर, इस समय ये रिसर्च हुआ है, ठीक है मैम। तो आपको जो सेकंड पॉइंट जो आप, यस मैम, ये एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। एनीबडी एल्स? Any other question? Candidates, this is the right time to ask questions. मैम इसेंशियल्स पेपर्स एंड रिलेटेड पेपर्स थोड़ा सा समझ में नहीं आया। Essential paper related paper जो है, if Namrata ma'am, if you can go to that slide, it would be more easier to understand. I'm just going through that essential paper. Slide number 17, ma'am. Slide number 17, 17. Yes. एसेंशियल पेपर और रिलेटेड पेपर जो है, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा काम एक्चुअली आसान कर देता है। जैसे कि मैंने, अब आप इसमें देख सकते हो स्क्रीन पर, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट, ये एक पेपर का टाइटल है, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप इसमें देखो कीवर्ड्स क्या क्या हैं। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन पहला कीवर्ड हमको मिला है, अलाइनमेंट सेकंड कीवर्ड है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन थर्ड कीवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फोर्थ कीवर्ड है, ठीक है। तो अगर आप ये 4 वर्ड डालोगे गूगल स्कॉलर पे, तो आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से आपका इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है आपका जो ये थ्योरी है, वो है आपका रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो मेन बेस जो है वो है। तो एसेंशियल पेपर जो है हमको रूम्स थ्योरी से रिलेटेड जो है वो निकालना है। अब जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। कम्युनिकेशन के लिए हम जो है, आप देख सकते हो सेकंड रिलेटेड पेपर जो है कि ये एन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मॉडल फॉर द होटल एम्प्लॉय मोटिवेशन, एग्जामिनिंग द मॉडरेट रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपका सेकेंडरी पेपर हो गया, क्योंकि इसमें आपका एक्सपेक्टेंसी डायरेक्ट नहीं है, करेक्ट। जो आप पहला जो टॉपिक देख रहे हो वो है आपका एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट। तो अपना एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट को वी हैव टू फाइंड, तो दैट्स द मेन पेपर, एसेंशियल पेपर।
एंड रिलेटेड पेपर इज कम्युनिकेशन, जो कि सेकंड पार्ट है। जो भी आप रिसर्च टॉपिक लिखते हो उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ पॉइंट है जो बहुत, जिस पर आपका बेस है खड़ा है, और जो कुछ है वो साइड है। तो जो साइड पार्ट है वो आपका रिलेटेड पेपर हो जाता है, जो मेन पार्ट है वो आपका एसेंशियल पेपर हो जाता है। क्लियर हुआ मैम आपको? Okay, ma'am. मैम यस। मैम मैंने कुछ लिटरेचर रिव्यू पढ़े हैं, उसमें एट टाइम्स ये लिखा रहता है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किए हैं उसको भी मैम वो अलग से अपेंडिक्स डालते हैं। अच्छा। तो क्या ये रिक्वायर्ड है कि मैम कि अगर फॉर्मेट ऐसा है तो ही डालना चाहिए? अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है अदर स्कॉलर्स को काफी हेल्प मिल जाता है। लिटरेचर रिव्यू समथिंग डेटाबेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके काम की भी ऑथेंटिसिटी बताता है कि आपने कितना वाइड किया है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। आपके लिए भी एक वो बेस स्ट्रांग हो जाता है एक्चुअली। थैंक यू मैम। वेलकम। Any other queries? I think there is no query because you explained very well and very detailed. So officially, on the behalf of Bharati University, yes. मैम मैंने कुछ शोधगंगा से कुछ रिसर्च पेपर वो मतलब थीसिस का स्टडी किया है। उसमें मैडम ये दिख रहा है कि हमारे जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी में जो हुआ है वो कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी वाले भी कुछ किए हैं मैडम। तो वो दोनों मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट में हम उसको यूज कर सकते हैं ना? देखिए, ये अगेन बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि जैसे कि एक टॉपिक का बहुत डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ कहूंगी कि आप स्टिक करें अपने ही स्ट्रीम में। जैसे कि वो दूसरे स्ट्रीम में किया, अगर आप उसमें आप एंटर करोगे आपको नॉलेज होगा, बट आपके रिसर्च के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका रिसर्च जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो बायो में आप घुसोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो उनको वो करने दो और आप अपने जगह पे रखें। यस मैडम, वो एक्चुअली क्या है, वो जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस वाला जो मतलब एप्लीकेशन जो यूज किए हैं वो भी उसमें यूज कर सकते हैं, बॉटनी वाले लोग करते हैं, फॉरेस्ट्री। वही बात है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, यस करेक्ट? मैम। तो वो यस है कि मैम। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप अपने हिसाब से सोल्यूशन लो। यस तो मैम। आपका टाइम, क्योंकि आपको पता है रिसर्च जो है वो बहुत टाइम इंटेंसिव है, अपने 3 साल ऐसे नहीं वेस्ट होते हैं इसमें। तो उसको यस फ्रूटफुल बनाना, वी हैव टू मेक इट मोर फ्रूटफुल। तो यू गो यस स्ट्रेट, डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ। यस मैम। यू हैव टू सेट योर ठीक है। ओन बाउंड्री। मैंने बताया ना, आपको अपना बाउंड्री खुद सेट करना है, यस अदरवाइज हमारे लिए मतलब ये कभी नेवर एंडिंग टास्क है जो रिसर्च है। यस यस। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम। Any other query? Candidates, you are free to ask. Here I am showing ma'am's mail ID. You can mail her. Is there any other query? I think no. So officially I am going to say thank you to Dr. Nidhi Raj on the behalf of Bharati University. I extend a really hearty vote of thanks for sharing your knowledge and experience with our research scholars, and definitely it will helpful for our research scholar. And already you share your mail ID in case of any doubt or query, they can approach you. So this is the biggest opportunity for them. Thank you so much ma'am. Definitely we will call you in and invite you in near future also. So spare time for us. Now I am closing. Yes ma'am, thank you so much. Thank you so Thank much. you. I really like the way student Thank you, interacted. ma'am. So that was also enjoyable for me. And you can really reach me on my mail. You can connect me on LinkedIn. So I will be available for you. Thank you so much, Dr. Namrata, again for giving me this opportunity. Thank you ma'am. I am just going Thank to you so end. much. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you so much. Okay everyone, I am going to end up this session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. Thank you.